Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your science teacher. How are you students? I hope you all are good at your places and doing well. Today in this video session we are going to continue chapter 6 of your class 10th science, that is life processes. During the last video we have learned two life processes, that is nutrition and respiration. In this video we are going to do the remaining portion, that is transportation and excretion. So students, we will start with transportation. Now what is transportation? आपने in general पढ़ा होगा transportation, हम कभी भी एक general उसमें बात करें तो transportation means कुछ भी substances को या goods को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. Now when we are talking about our body, the body may be substances has to be transported from one place to another, या from one part of the body to the another. So transportation means the movement of substances from one part of the body. जैसे suppose जहाँ पे उस body उस substance का formation हुआ है वहाँ से उसको transport करेंगे body के बाकी parts को भी. So human beings like other multicellular organisms need regular supply of food and oxygen. So we are taking from outside, food we are taking from outside and oxygen is also coming into our body. Now we are just taking it, but how it is utilized in the body or how it is transported from one place to another, we will understand with this topic. So the function of transportation is performed by circulatory system or transport system. We can call it as circulatory system also because the things or the substances are to be circulated in the whole body. पूरी body में circulation होगा. It is a life process in which a substance absorbed or made in one part of the body of an organism is carried to the other parts of its body. So mainly transportation is the movement of substances. Now let us start with the transportation in human beings. So as you know, we have already told this, it is also known as circulatory system. So how the things are circulated? So the system is made up of three parts: a pumping organ, blood vessels and the circulatory medium. Pumping organ is one and only heart. Blood vessels helps to carry the substances from heart to the different body parts or from different body parts to the heart. And then circulatory medium. Now as we have roads on the land, roads होते हैं जिस पे से ट्रक होकर गुजरते हैं, इसी तरह से arteries और veins में से blood और lymph will travel through and they will carry the substances, and the main substance which is being transported is blood and lymph also. So blood will carry all the things. Now see how it happens. The blood, as we have already understood in 9th class, that blood is a connective tissue. Why it is called connective tissue? Because it is connecting many parts of the body to each other. Now as it is a connective tissue, it has two parts, a solid component and a liquid component, means the liquid part and the solid part. As we have already understood कि connective tissue, कोई सा भी connective tissue हो उसमें दो parts रहते हैं, matrix and cells. तो matrix is the base part जिसमें ये सारे cells dissolved रहते हैं, dissolved या present होते हैं. तो solid components are called blood corpuscles या blood cells जिनको कहते हैं, and the liquid component of the blood is plasma जिसमें ज़्यादातर 90% water होता है, 10% organic substances like plasma, proteins, albumin, globin and inorganic mineral ions are also present. So this is the liquid part या फिर हम इसको matrix भी कह सकते हैं. And in this matrix blood cells या blood corpuscles are present. अब वो कौन से हैं ये देखते हैं. RBCs, that is also known as red blood cells या red blood corpuscles भी कह सकते हैं, and they are also known as erythrocytes. Then WBC, white blood cells, or they are also called leukocytes. They have their own function, we will discuss it. And the third part is blood platelets. So let us see their function. RBC, that is red blood cells, carries respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide. We take oxygen from outside and the oxygen get dissolved with the food, the food get oxidated with the help of oxygen, then carbon dioxide is released, formed in the cells, and the carbon dioxide is given out from the body. RBC is mainly
it mainly contains hemoglobin which impact red color to the blood, and hemoglobin is also known as respiratory pigment. So the main function of RBC, rather hemoglobin का main function है to carry oxygen. Then we come to WBC. WBC के भी types होते हैं, lymphocytes, basophils, eosinophils. Actually WBC का भी पूरा डिटेल में हम और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मेनली द WBC या वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है टू हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, या जो भी कोई बाहर से कोई फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आती है, बैक्टीरिया, वायरस, तो उनको किल करने का काम करते हैं WBC. दैट इज इट प्रोवाइड डिफेंस बाय एनगल्फिंग द जर्म्स, किल करते हैं जर्म्स को एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. अभी आप आजकल सुन ही रहे हैं, कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हमारा WBC इट शुड बी इन प्रॉपर क्वांटिटी, और इसमें लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो कि हमारे अंदर आने वाले वायरसेस को किल करेंगे. तो इट मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग. थर्ड पार्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, विच मीन्स ब्लड क्लॉटिंग कब ज़रूरत है? सपोज कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ब्लड अपने आप वहाँ से निकलना बंद हो जाता है, मीन्स वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर लिक्विड ब्लड है वो बाहर आना बंद हो जाता है. तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. सो लेट अस मूव फर्दर. नाउ विल सी हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी. पूरा अभी हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. सो विल सी हाउ ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी. तो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम एक बार एक शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर डिटेल में चलेंगे. कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ब्लड कोई एक जगह से शुरू हो रहा है ऐसा नहीं है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. वी कैन पिकअप कोई किसी भी एक पोजीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं. सपोज वी स्टार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी. तो बॉडी का जो बॉडी में हमारे 2 तरह का ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, एंड डीऑक्सीजनेटेड कब होगा वो, जब हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी एंड दैट ऑल्सो गेट मिक्सड विद ब्लड. तो हम बात कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये हम हार्ट की भी बात कर रहे हैं, तो हार्ट में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कैवा. इसको भी हम और डायग्राम से भी समझेंगे. इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, देन फ्रॉम राइट एट्रियम ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में पहुंचेगा. किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए. तो लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, दैट मीन्स द प्योर ब्लड, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल नाउ रीच टू लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलेगा एओर्टा से. एओर्टा विल ब्रिंग या विल सेंड द ब्लड इनटू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. देन अगेन इट विल गेट डीऑक्सीजनेटेड. इस तरह से वापस से सर्कुलेशन. तो ये एक शॉर्ट में था ये पूरा सर्कुलेशन. नाउ विल सी इन डिटेल. अब आप ये देख सकते हो, दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ हार्ट. किस तरह से इसमें हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना. अभी हमने फ्लो चार्ट से समझा था. नाउ विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. अब आप इस डायग्राम को इस तरह से इमेजिन करेंगे. सपोज आई एम स्टैंडिंग, तो दिस इज माई लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट. तो ये इस तरफ का जो है राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है. नाउ जस्ट लुक एट, अभी हमने बात की थी वेना कैवा की. तो वेना कैवा ये क्या करते हैं, वेना कैवा वैसे 2 रहते हैं, सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा. सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा. सुपीरियर वेना कैवा क्या करता है, बॉडी के ऊपर के पार्ट से ब्लड को लाता है. कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऐसे इन्फीरियर वेना कैवा विल ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, सो वेना कैवा का क्या फंक्शन है, इट विल ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट. अब हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर 2 एट्रियम एंड लोअर 2 आर वेंट्रिकल्स. ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, या फिर एट्रियम और वेंट्रिकल कह सकते हैं. दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल. नाउ वेना कैवा ब्रिंग्स द ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में. तो राइट एट्रियम में देखिए एरो बता रहे हैं, एरो से पता लग रहा है द ब्लड इज कमिंग इनटू द राइट एट्रियम. देन फ्रॉम राइट एट्रियम इट इज गोइंग इनटू राइट वेंट्रिकल. ठीक है, अब ये इसमें से इसमें कैसे आ पाता है, ये जो 4 चैम्बर्स हैं, देयर आर 4 चैम्बर्स इन योर हार्ट. एक एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब सिकुड़ता है.
सिकुड़ेगा व्हेन द, जैसे स्पॉन्ज को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वीज करते हैं तो क्या होगा, उसमें जो भी लिक्विड भरा है वो बाहर आएगा। तो व्हेन द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड स्क्वीजेज इनटू द राइट वेंट्रिकल, ब्लड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, देन इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड, देखो ये डायरेक्शन देखो एरो की, द ब्लड विल गो थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, द पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ये जा रही है, देखो पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। किस लिए? फॉर प्यूरिफिकेशन, मीन्स फॉर उसमें ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए। नाउ पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पहुंचेगी? लंग्स में, लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होगा और फ्रॉम द लंग्स, सी दिस एरो, पल्मोनरी वेन्स विल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड लंग्स में जाके कैसा हो गया है? ऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो नाउ फ्रॉम द लंग्स पल्मोनरी वेन्स विल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, रिमेंबर दिस पाथ, रीड इट अगेन एंड अगेन। नाउ लेफ्ट एट्रियम में आ गया ब्लड, नाउ लेफ्ट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज होगा, so that blood goes into left ventricle. Now from the left ventricle the blood is sent through the aorta. aorta है यहाँ पे, aorta में जाएगा blood. aorta will carry the blood into the whole body. ठीक है, aorta से होता हुआ पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा। कैसा ब्लड है ये? प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। नाउ व्हेन द ब्लड गोज इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट टिश्यूज में जब जाता है तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज। नाउ द ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड। जब ब्लड हार्ट से बॉडी में जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स हो गया। नाउ इट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी कह सकते हैं इसको। नाउ द डिफरेंट टिश्यूज में से होता हुआ, डिफरेंट बॉडी में से होता हुआ वापस दीज वेना कैवा will bring the deoxygenated blood into the right atrium। तो हम यहीं से चले थे, right atrium से blood circulation हमने start किया था। I hope you are getting, ठीक है, just go through it once again, अगर एक बार में समझ में नहीं आता फिर से देखना इसको। तो this is the whole circulation of the blood के किस तरह से circulation होता है। तो when we talk about the chambers of the heart, आपको ये याद रखना है, upper two chambers थोड़े small भी हैं, these are the atrium and these are the वेंट्रिकल्स। और यहाँ पे देखिए बीच में एक वॉल है, दिस इज कॉल्ड सेप्टम, दिस इज द डिवाइडिंग वॉल विच कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने में हेल्प करता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम ऑल्सो, यू कैन रेफर टू योर बुक पेज नंबर 106। इन दिस डायग्राम यू कैन सी that the circulation of blood को हम circulation को 2 parts में divide कर सकते हैं। Actually heart में blood 2 बार आ रहा है, देखो एक बार वेना कैवा is bringing the blood into the heart और एक बार lungs में से heart में blood आ रहा है। ओके, तो this is showing double circulation। ये बहुत important topic है आपके board point of view से कि what is double circulation and how it take place, तो वो पूरा समझा रही हूँ मैं आपको। So as the blood is coming into the heart 2 times, दो बार आ रहा है ब्लड हार्ट में, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब वो 2 बार कैसे आ रहा है, जस्ट सी। वंस तो हमने अभी देखा ही था, वेना कैवा इज ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। यहाँ से देखिए ब्लू हो गया, ब्लू कलर इज शोइंग कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है एंड रेड कलर इज शोइंग कि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। तो व्हेन द ब्लड इज कमिंग थ्रू द वेना कैवा इट इज डीऑक्सीजनेटेड और ये कहाँ पे आ रहा है, देखो राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, then it goes into the lungs through pulmonary artery। तो यहाँ पे ब्लड एक बार हार्ट में आया, अब यहाँ पे प्यूरिफाई होकर यहाँ से लंग्स में से पल्मोनरी वेन के थ्रू, अभी हम वेन्स और आर्टरीज में भी डिफरेंस देखेंगे, तो पल्मोनरी वेन्स आर ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये लंग्स वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हेन द ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट। ठीक है, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में आ गया, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। नाउ व्हेन द ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एंड अगेन टू द हार्ट, ये वाला जो पाथ आ रहा है,
यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है तो इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो दो सर्कुलेशन हमने देखे, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड systemic circulation. That's why the circulation, this blood circulation is called double circulation. Now जब हम blood vessels की बात करेंगे तो there are mainly two types of blood vessels, veins and arteries. Veins, arteries, और veins और arteries जुड़ी होती हैं capillaries से, तो mainly veins and arteries, इनका भी हम difference भी देखेंगे. So I hope you understood the double circulation. Now again we can revise through this. Blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body. अभी आपको बताया था दो बार हार्ट में ब्लड आ रहा है. Pulmonary circulation, that is blood moves from the heart to the lungs and back to the heart. Systemic circulation, blood moves from the heart to the rest of the body and back to the heart. So before we start lymph, let me tell you one thing कि ब्लड प्रेशर की बात मैं आपको समझाती हूँ थोड़ी. व्हाट इज ब्लड प्रेशर एंड हाउ इट इज मेजर्ड. तो ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू ब्लड हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूस होता रहता है. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे होता है? जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है. और जब वेंट्रिकल्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है तो रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है. तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा बहुत ज़ोर से होता है तो वो 120 मिलीमीटर पर एचजी के हम मेजर करते हैं. जब भी आपने किसी का ब्लड प्रेशर देखा होगा या नापते हैं तो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर इज 120 mmHg और जो लोअर लेवल होता है वो 80 मिलीमीटर Hg. मरकरी में अपन मरकरी लेवल से नापते हैं. तो स्विग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ठीक है. यू कैन रेफर टू फिगर one box is given in your book page 107 पे in which you can see how blood pressure is measured. Now other than blood we can see lymphatic system is also there. एक तो blood circulatory system तो होता ही है, lymph is also there. Now lymph कैसे बनता है या क्या है ये? Actually जब blood capillaries में से flow हो रहा है, blood is flowing through the capillaries, capillaries बहुत fine होती है तो blood pressure की वजह से उन कैपिलरीज में स्मॉल होल्स होते हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा कुछ लिक्विड पार्ट बाहर की तरफ आ जाता है तो दैट मेक्स द लिम्फ. इट इज कलरलेस, इट डज नॉट हैव हीमोग्लोबिन, इट इज वेरी कलरलेस. इट इज अ येलोइश फ्लूइड दैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस. इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स. तो ब्लड जैसा इतना मेन फंक्शन ब्लड वाला नहीं है लेकिन लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए. तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर आर लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे लिम्फ स्टोर होता है, जैसे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं. टॉन्सिल्स आर ऑल्सो एक तरह से लिम्फ नोड है. जो हम कभी बीमार होते हैं या कभी हमारे टॉन्सिल स्वेलअप हो जाते हैं तो ये क्या है हमारा, इट शोज कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ फॉरेन जर्म्स से या जो हमारे बाहर से जो भी कोई चीज़ें अंदर आई हैं बैक्टीरिया वायरस उनसे फाइट जब करती है बॉडी तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से हमें कभी फीवर आ जाता है या कभी हमारे कहीं स्वेलिंग आ जाती है या टॉन्सिल स्वेलअप हो जाते हैं. तो दिस इज ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. तो ये लिम्फ नोड्स में लिम्फ स्टोर होता है और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है एंड दिस हेल्प्स टू इसी में लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो हमको जर्म्स को किल करने में हेल्प करते हैं एंड इट मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. नाउ एज आई टोल्ड यू आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. अभी हमने देखा था कि जैसे पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी वेन है, ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे आर्टरीज और वेन्स होती हैं, है ना. अब लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन दीज आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज एक्चुअली कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट और कैसा ब्लड होगा? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. अभी मैंने आपको समझाया था जब ब्लड सर्कुलेशन तो हार्ट में से राइट वेंट्रिकल में से कैसा ब्लड जा रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन लेके जा रहा था? पल्मोनरी आर्टरी. तो कैसा ब्लड ले जा रहे थे? पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि नॉर्मली ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज deoxygenated blood, otherwise all the arteries carry oxygenated blood.
Many times this question is asked in board exams कि arteries और veins में क्या difference है. तो arteries carry oxygenated blood except pulmonary arteries and veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein, okay, which carry oxygenated blood. और veins carry blood to the heart. ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में कौन लाएगा? वेन्स. जैसे हमने देखा वेना कैवा इज अ लार्ज वेन विच इज ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट. तो एक डिफरेंस ये समझ में आया. सेकेंड इज नॉर्मली ब्राइट रेड इन कलर एंड वेन्स आर नॉर्मली डार्क इन कलर. आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स. आपने देखा जब हार्ट से ब्लड फर्स्ट टाइम एओर्टा से जा रहा है, एओर्टा क्या है? एक तरह की बड़ी आर्टरी है. तो व्हेन द ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द एओर्टा तो बहुत प्रेशर से जाता है. जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो बहुत प्रेशर से ब्लड को थ्रो करते हैं. तो इट हैज़ अ वेरी मच प्रेशर. तो इसकी वॉल्स जो होती हैं, आर्टरीज की वॉल्स हैव टू बी इलास्टिक, नहीं तो डैमेज हो सकती हैं. तो आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स दैट एक्सपैंड विद सर्ज ऑफ ब्लड. जैसे ब्लड आता है तो उसके साथ साथ थोड़ी सी वो फैल जाती हैं. whereas veins have thin walls and less elastic. Then arteries have no walls. Walls का क्या फंक्शन होता है? Walls का ये फंक्शन होता है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ब्लड के बैक फ्लो को, ब्लड वापस से पीछे ना आ जाए, इसके लिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में. आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स, वेन्स हैव वॉल्स. आर्टरीज को हम फील कर सकते हैं. आर्टरीज की जो पल्स होती है उसको फील कर सकते हैं. आप अपने रिस्ट पे फील कर सकते हो. रिस्ट पे जैसे डॉक्टर का भी पल्स बीट देखते हैं तो यू कैन फील द पल्स ऑन योर रिस्ट. ऐसे ही बॉडी में कई सारी जगह है, गर्दन में, एंकल पे, वेयर यू कैन फील द आर्टरीज. अदरवाइज ऑल द आर्टरीज आर डीपली सीटेड. बॉडी के अंदर थोड़ी गहराई में होती हैं, ऊपर नहीं होती हैं. जो हमें ये ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की जो ये वेन्स ये दिख रहे हैं, ये वेन्स होते हैं एक्चुअली. तो वेन्स में कोई हमें पल्स फील नहीं होगी, आर्टरीज में पल्स फील होती है. तो आर्टरीज आर डीपली सीटेड एंड वेन्स आर सुपरफिशियली प्रेजेंट विच वी कैन सी थ्रू आवर स्किन. ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. अब आप इस डायग्राम में से भी देख सकते हो, ये आर्टरी है. आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल्स. ये और थोड़ी पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है. दीज आर कॉल्ड आर्ट्रियोल्स. आर्ट्रियोल्स आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू, और जो फाइन ट्यूब्स हैं इनको हम कैपिलरीज कहते हैं. नाउ दीज फाइन ट्यूब्स जो कैपिलरीज हैं, यहीं की कैपिलरीज फिर जॉइन होकर वेन्यूल बनाती हैं. देन वेन्यूल अगेन रीजॉइन टू फॉर्म वेन्स. तो ये इस तरह का पूरा एक नेटवर्क हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसमें से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर ये कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, जो ये अगेन हार्ट में जा रहा है फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन. तो वी हैव सीन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. सिमिलरली प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. प्लांट्स में भी सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनका सर्कुलेशन पूरे प्लांट बॉडी में ज़रूरी है. तो वी हैव अंडरस्टूड दिस इन 9th क्लास ऑल्सो कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स. जाइलम, it carries water and minerals from the roots to all the parts of the body, all the parts of the plant, whereas in phloem carries product of photosynthesis from leaves to other part of the plant. अब जाइलम में जो वाटर एंड मिनरल्स है वो तो रूट्स के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है, जबकि फ्लोएम कैरी करेंगे फूड को. इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स. तो इसका जो डायरेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, ये बाय डायरेक्शनल होता है. एंड द डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज ओनली टुवर्ड्स अपसाइड. तो इसको हम यूनिडायरेक्शनल कह सकते हैं. जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन में, मीन्स वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में नो एनर्जी इज यूज्ड, वेयर एज जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ATP. So this xylem and phloem, both of them combiningly can be called as conducting tissues because they are transporting the substances from one part to another. One more process which takes place in plants is transpiration. You are already familiar with this. Transpiration is what? Loss of water
in the form of water vapor through the stomata present in the leaves. So, transpiration is the process by which plants lose water in the form of vapors. तो वाटर वेपर के फॉर्म में जब वाटर लॉस होता है उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन इन द प्लांट्स? एक्चुअली ट्रांसपीरेशन के कई यूजेस हैं प्लांट के लिए. जैसे एक तो ट्रांसपीरेशन होता रहेगा तो प्लांट की बॉडी कूल रहती है, एक तरह से इवेपोरेशन हो रहा है तो इट रिमेन्स कूल. एंड द अदर मेन फंक्शन इज नीचे रूट्स में से तो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स, बट जैसे आप देखते होंगे 100 मीटर 200 मीटर्स तक के हाइटेड प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. अब इतनी ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता होगा, इतने ऊपर तक वाटर मिनरल्स कैसे पहुंचते होंगे? तो एक्चुअली ट्रांसपीरेशन जो ऊपर जब ट्रांसपीरेशन होगा लीव्स में तो वो एक सक्शन क्रिएट करता है. इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल ड्यू टू विच जब नीचे से तो सिर्फ डिफ्यूजन से वाटर अंदर जा रहा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू तो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, लेकिन ऊपर तक प्लांट में जो वाटर ऊपर तक जा रहा है वो इस ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होता है. ट्रांसपीरेशन पुल से एक तरह का सक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से नीचे से वाटर ऊपर अपने आप ट्रांसपोर्ट होता है. तो ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग पुल so that water can reach up to tall plants, and translocation and helps in temperature regulation in the plant कि plant की body को cool रखता है. Now we come to the next topic, next life process, that is excretion. Children, we have talked about, अभी तक हमने कई तरह से बातें की कि फूड हमने लिया, न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में हमने सब्सटेंसेस का सर्कुलेशन पढ़ा कि वाटर, मिनरल्स, फूड, ऑक्सीजन, ये सब सर्कुलेट होते हैं. नाउ व्हेन ऑल दीज लाइफ प्रोसेस आर बीइंग कैरिड आउट इन द प्लांट या एनिमल, कई तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, कई तरह के हार्मफुल products which are to be removed from the body. So that is what the excretion. Okay, you can refer to page number 110 in your book. So when we talk about excretion, actually removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. So whether it is plant or animal, all of them show excretion. Now we will understand the excretory system in humans. Excretory system of human beings include a pair of kidney. You can refer to the diagram 6.13, figure 6.13 in your book. A pair of kidney, a urinary bladder, a pair of ureter and a urethra. So these are the parts of excretory system. Now listen students, this diagram is very important from exam point of view, board point of view. Please practice this diagram and let us understand it. So human excretory system, as I told you the parts, अब इसमें डायग्राम से भी देख सकते हैं. A pair of kidney, ये bean shaped kidney present होती हैं. Then two ureters, pair of ureters, urinary bladder and urethra. Now how the excretion takes place through this, let us see. This is inferior vena cava which brings the deoxygenated blood या impure blood उसको लेकर आएगा. This is the transfer section of kidney. This is the pelvis region. This is medulla, cortex. Renal vein brings the blood and arteries. ये blood को प्योर करने के लिए, filtration करने के लिए किडनी में लेकर आते हैं. This is aorta and these are the different parts of excretory system. Now let us see how the process takes place. How the process of excretion takes place. Now let us see what does the renal artery do. Renal artery bring the blood containing waste substances to the kidney. तो artery का क्या काम है? It will bring the impure blood for the filtration. Kidney का क्या function होता है? Filtration of blood. Now kidney filters the blood. How kidney will filter? That we'll see. Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder. After the filtration, ureters carry the waste substances into the urinary bladder where it is stored temporarily until it is released through the urethra. Now what is the main function of kidney? It removes waste products from the blood, that is urea, which is produced in the liver. तो liver में जितना भी waste produce हो रहा है वो kidney के through filter होकर हमारी body को ठीक रखता है.
Now we talk about the structural unit of excretion, that is nephron. जो पूरी किडनी की हम पूरी बात करते हैं, बट एक्चुअली किडनी में मेन वर्क कौन कर रहा है, वो नेफ्रॉन करता है. नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है, विल सी थ्रू द डायग्राम ऑल्सो. और आपकी बुक में भी आप पेज 111 पर 6.14 फिगर देख सकते हैं. एंड दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. एक क्वेश्चन है आपके कि डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन. तो एल्वियोलाई तो क्या है, लंग्स की यूनिट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शनल यूनिट है. और जबकि नेफ्रॉन किसका फंक्शनल यूनिट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, या किडनी का भी कह सकते हैं. तो ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. Nephron is the structural and functional unit of kidney. The nephron has a cup-shaped bag at its upper end, which is called Bowman's capsule. Then the lower end of the capsule is tube-shaped and is called tubule. We'll see through the diagram also. Just have a look at the points. The Bowman's capsule and the tubule together make a nephron. The Bowman's capsule contains a tuft of blood capillaries which is called glomerulus. Now let us understand with this. ये आप देखो, ये कप शेप्ड है ना, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम Bowman's capsule कहेंगे. इसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, पूरा एक गुच्छा है कैपिलरीज का जहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस. Now this Bowman's capsule and glomerulus, ये पूरा ये कप शेप्ड है. Then the waste, इसमें से जब फिल्टर होकर ये ट्यूब्यूल है, दिस इज ट्यूब्यूल, दिस कैरी द हार्मफुल सब्सटेंसेस. फिर यहाँ पे आते हैं तो दिस इज लूप ऑफ हेनले. एक्चुअली लूप ऑफ हेनले दो पार्ट्स में मिलकर बना है, पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट. वासा रेक्टा का भी फंक्शन होता है, दैट आई विल टेल यू. एक्चुअली ये जो रेड कलर की और ये ब्लू कलर की ये ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, ये क्या करते हैं, जब यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, व्हेन द ब्लड इज फिल्टर्ड, तो उस वक्त जब फर्स्ट फिल्ट्रेशन हो रहा है तो बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेस भी यहाँ पे रिमूव होने के लिए इस लूप ऑफ हैंडले में आ जाते हैं. तो मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑल्सो मे बी थ्रोन आउट, लेकिन उन यूजफुल सब्सटेंस के रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये वासा रेक्टा प्रेजेंट है. ये क्या करते हैं, जो इसमें से जितना भी इस ट्यूब में जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है इसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं. अदरवाइज बहुत सारे जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी. नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, जैसे अभी मैंने शॉर्ट में बताया आपको. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. कैसे होता है देखो, blood is filtered from the glomerulus into Bowman's capsule. Bowman's capsule के अंदर blood filter होकर glomerulus से आ जाएगा. This filtrate passes through the tubules of the nephron. So when the blood is filtered, it is being collected and it is sent through the tubules. अब tubular reabsorption, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कई सारे useful substances भी excrete out हो जाएं अगर reabsorption ना हो. तो now useful substances from the filtrate like sodium ions, potassium ions, glucose, amino acids etc. they are reabsorbed by the vasa recta, या जो capillaries हैं उनसे वो नेफ्रॉन को लपेटा हुआ है उसने. these capillaries are being surrounding the nephron into the blood. तो ये जो capillaries हैं ये क्या करती हैं, reabsorption करती हैं. Then secretion, urea, extra water and salts are secreted out into the tubule which opened into the collecting duct and then into the ureter. तो एक तो यूरिया हमारी बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस बनता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर सिक्रीटेड आउट इनटू द ट्यूब्यूल एंड दे आर कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट देन इनटू द यूरेटर. तो इस तरह से दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन and all this work is performed by nephron. That's why nephron is called structural and functional unit of kidney. Now बच्चों आपने सुना होगा कि कई बार किडनी फेल हो जाती है, मीन्स द किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. जब किडनी ठीक से वर्क नहीं कर रही होती है
तो समटाइम्स डायलिसिस करवाने की ज़रूरत पड़ती है. नाउ व्हाट इज़ डायलिसिस? एक्चुअली द फंक्शन विच इज़ परफॉर्म बाय द किडनी इज़ नॉट डन प्रॉपरली बाय द बॉडी. तब क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं इसको. तो ये डायलिसिस मशीन है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ किडनी. अब जब किडनी किस तरह से वर्क करती है, वैसा का वैसा ही वर्क ये डायलाइजर मशीन करेगी. देखो, तो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज हीमोडायलिसिस. इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट. अब देखिए, ये रीनल आर्टरी है, मतलब आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड इस आर्टरी के थ्रू यहाँ पे इस मशीन में, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी रहती है जिससे फिल्ट्रेशन में हेल्प मिलती है. तो दिस यहाँ पे आके सारा डायलाइजिंग होगा. ओके, दिस इज द फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन विच इज सेंट इनटू द मशीन. एंड यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है इट इज बीइंग रिमूव थ्रू दिस. तो देखिए, यहाँ पे यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन है और जो वेस्ट है वो इसमें आ जाएंगे. एंड द प्योर ब्लड प्योर होने के बाद वापस से वेन के थ्रू बॉडी में भेज दिया जाता है. तो दिस इज द मशीन, इसको डायलाइजिंग मशीन कहते हैं. And the process is known as hemodialysis, which perform the function of kidney. So the patient whose kidney has been is not working properly, तो वो ये काम कर सकते हैं. Still another technique is also there, जो बार बार डायलिसिस करवाने की बजाय किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है. किडनी कैन बी transplanted from a donor also. Now let us see excretion in plants. As we have seen, harmful substances are being made in human bodies or other animals also. So plants also make some waste products which are to be removed from the plant. तो plants में क्या waste products हो सकते हैं वो देखते हैं. The main waste products produced by plants are carbon dioxide. आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, ठीक है. तो बट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में तो वो काम का नहीं है ना. तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा. ऐसे ही फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए. वाटर वेपर इज ऑल्सो बीइंग रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन विच आर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसिल्स इन स्टेम्स. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्लांट्स. So oxygen is released during photosynthesis and water during transpiration. तो most of the water absorbed by plants बहुत सारा water absorb करते हैं roots के through, लेकिन उसमें से बहुत सारा most of the water is transpired. किस लिए? एक तो plant body को temperature regulate करने के लिए भी और पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए भी ये transpiration ज़रूरी है. Waste may be stored in leaves, bark etc. which fall off from the plant. तो आपने देखा होगा कई बार लीव्स शेड होते रहते हैं, लीफ फॉल होता है. ऐसे बार्क भी डेड पार्ट है एक तरह से, तो वो भी गिरता रहता है. तो द वेस्ट आर एक्यूमुलेटेड इन लीव्स एंड बार्क ऑल्सो which fall off from the plant. Waste products stored as gums, resin in old xylem. कभी देखा होगा किसी ट्री में से कुछ लिक्विड पार्ट ऊज आउट होता रहता है. तो and they are of no use for them. Plants के लिए तो कोई यूज़ के नहीं है, although we use these substances in other कोई भी यूज़फुल हम इनको यूज़ कर लेते हैं. Plants excrete some waste into the soil also around them. तो roots के आसपास भी plants अपना कुछ waste product release करते रहते हैं. So children, this was all about transportation and excretion. Hopefully you must have understood all the topics of this chapter. Thank you students. Goodbye. Take care.